Hello guys, welcome to an Academy Catalyst. In today's session, we will be discussing most repeated questions in MHCT for quant section, and I'm Shashank Rathore. Before starting this session, some important information regarding an Academy Catalyst and an Academy. An Academy, you can follow an Academy Catalyst, an Academy Catalyst YT, and an Academy Catalyst Learner on Telegram, which are the official channels where you will be getting notified for all the classes, courses, and all the upcoming an Academy Catalyst YouTube session. As well as you will be getting notified for all the quizzes which are getting conducted by Unacademy educators daily. And let's start with the important information regarding Unacademy. Unacademy Cat Iconic 1:1 live mentorship program in which you will be mentored by a graduate from a top B school. He or she will be guiding you throughout your preparation. You can clear your doubts, you can discuss concept, you can discuss exam strategy, you can build a customized study plan, book slots as per your convenience. And these are the benefits which you will be getting in addition to Plus plan when you buy Cat Iconic, and you can use my referral code Rathor Live when you are subscribing to an Academy Cat Iconic subscription, through which you will be getting a discount. Learners who have cracked Cat 2020 with flying colors. Uh, Shivam Chandak, Aditya Gupta, Yatharth, Arkadeep, Anushka, Piyush, Siddharth, and could be the next one. All these learners have scored more than 99 percentile in CAT 2020. Then we have uh, the new batches which are getting launched on Unacademy for CAT 2021 preparation. From 28th July, we have Revision Guide 2.0 for CAT 2021, in which Shruti Kaura ma'am, Udasani sir, and Sagar Thakkar sir are conducting the classes. And then from 31st July, we have Practice Drill 2.0 for CAT 2021, in which Rahul Anand sir, Karishma Banwani ma'am, Parikshit Sakia sir are conducting the classes. Then from 4th of August, we have CAT Specialist Batch 1.0 for CAT 2021, in which Shabana ma'am, Ronak Kumar Shah sir, and Ravi Handa sir are conducting the classes. Then we have campus placement, IT job, free personal mock interview and group discussion offer valid on Plus subscription till 4th of August. 360-degree support to crack TCS, Infosys, Cognizant, and other exams. You have live project opportunity, A to Z technical skill support, aptitude development, weekly mock test, soft skills, and interview guidance. Then skill builder, brand new test series that will strengthen your skills on various competitive topics. For example, Monday to Friday you can cover vocabulary plus grammar. On Tuesday you can cover puzzles. Wednesday speed math. Then Thursday current affairs. Friday math concept booster. 15 questions, 30 minutes, 7 p.m. Monday to Friday daily. Then we have asked out feature on Unacademy, in which you can send your doubts to Unacademy 24/7. And while sending your doubts, few important things in mind, which are a few important things which you have to follow basically. The question or picture or screenshot which you are taking, it should be clear enough, and if it has options, please hit the options. Please mark the section correctly to which your question belongs, whether it belongs to QA, LR, or DI. Then we have India's biggest weekly scholarship test for CAT aspirants every Sunday at 12 p.m. Enroll for free. You can win scholarships from a pool of rupees 55 lakhs. Take it live from Android. CAT Combat every Sunday at 12 p.m. You can use my referral code Rathor Live, and the best way to get maximum discount on any CAT Plus plan. Rank 1 to rank 3 will be getting 1 year CAT Plus subscription. Rank 4 to rank 10, 75% scholarship. Rank 11 to rank 50, 50% scholarship. Rank 51 to 225% scholarship. And let's start with some important information regarding the MSCT most important. See, first of all, few topics which are very commonly asked in an academy, MSCT exam are percentage. Second, you will find number series pattern in quant section. Third, you will find algebraic expression, or you can say quadratic equation questions, very common. And fourth, you will find a question from mixture and alligation topic. These are few topics which are very commonly asked in MHCT exam. Every year you will find around 10, 5 questions from number series, 5 questions from algebraic expression, mixture and alligation, 1 question, percentage you can easily find 2 questions. So 13 questions you can easily do from these topics. Okay, let's start with one of the questions which have been asked in the previous years.
One sari was purchased for rupees 564 after getting a discount of 6% and another sari was purchased for rupees 396 after getting a discount of 1%. Taking both the items as a single transaction, what is the percentage of discount? A 3.5, B 4, C 7, D 7.5, E 8.2. So guys, simple question है. Two different items हैं. Let their mark price be different. The marked price of first saree can be taken as X. Marked price of second saree can be taken as Y. अब फर्स्ट सारी पे डिस्काउंट मिला 6% का, विच मीन्स जो हमारा क्वेश्चन होगा x माइनस 6x/100 इज इक्वल टू 564. यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 94x, वहाँ गया 94 को डिवाइड करेंगे 6, करेक्ट. वी आर गेटिंग x इज 600. सिमिलरली y के केस में जब करेंगे y माइनस उसमें 1% का डिस्काउंट था विच इज 96, 99y, तो y आपका आ जाएगा 400. अब आपको कंबाइंड देखना है. कंबाइंड जो सीपी है वो कितना है? मार्क प्राइस इनका हो गया 1000 एंड देन जो आपको डिस्काउंट के बाद दोनों का कंबाइंड प्राइस मिला 960 विच इज 40 ओरिजिनली डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100. तो बेसिकली 4% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. तो अगर आप देखते हैं तो ये पहला क्वेश्चन, मतलब यू विल फाइंड क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इजी sometimes in MSCD exam. Then second, we will be doing number series pattern. First question of number series is 200, 196, 192, 180, 160, 138 and 88. Among the following, which is the wrong one? Your options are A 180, B 196, C 200, D 88, E 160. So if you check the difference among these, the difference is continuously, यहाँ पे देखते हैं तो डिफरेंस है 12 का, देन डिफरेंस बढ़ जाता है 20 का हो जाता है, देन डिफरेंस 30 का हो जाता है. इफ यू सी दी पैटर्न, यहाँ से अगर हम चेक करें डिफरेंस, तो डिफरेंस काफी बढ़ता घटता रहता है. यहाँ से चेक करते हैं 12 कम हुआ, फिर 20 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ एंड देन 42 कम हुआ, और यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो 4 है. तो पैटर्न थोड़ा अजीब लगता है. फिर आप आगे देखोगे, इफ यू गो फॉर द पैटर्न, यहाँ पे 12 का डिफरेंस था, यहाँ पे 20, 30 और यहाँ पे था 42 का. अब जब आगे देखते हैं तो ये बढ़ेगा, ये हो जाएगा 8 और 12. इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इससे पहले यहाँ पे आना चाहिए था 6 का डिफरेंस, और उससे पहले आना चाहिए था 4 का. तो इस हिसाब से जो ये 196 है ये गलत होता है.
तो द रॉन्ग नंबर इज 196, इट शुड बी 198। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारा जो सेकंड सीरीज है, we'll solve that one. Our second series is 9.2, then 10.6, then we have 7.6, then we have 12.4, then we have 6, then we have 14, and then we have 4.4. So we have to identify the wrong number in the series. इस पूरी सीरीज में कौन सा नंबर गलत है? बिल्कुल कतई गलत है। तो 9.2 1.6 है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस देखो। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.6 का, नहीं 1.4 का आ रहा है, वो भी प्लस का। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग का, और उसके आगे आगे आप डिफरेंस चेक करोगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस टू बी इंक्रीजिंग, प्लस 4.8, देन फिर माइनस 6.4, एंड देन फिर आगे 8, एंड देन 9.6 का चेंज आ रहा है। तो ये अब इन जो डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंट है, इफ यू विल गो थ्रू इट यू विल फाइंड दैट उसमें भी एरर है। ये वाला जो नंबर है ये थोड़ा गड़बड़, यहाँ पे डाइसी है, एंड इट शुड बी 10.8। अगर ये 10.8 होता है तो ये 1.8 हो जाएगा, ये 3.6 हो जाएगा, 1 पॉइंट नहीं 9.2 1.6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2। फिर सही चल रहा है, 16 होते 32 48 64 18 96, तो पूरा का पूरा पैटर्न सही चल रहा है। तो यहाँ पे दिस इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। द थर्ड क्वेश्चन फॉर द सेम सीरीज, इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर करेक्ट है, कौन सा नंबर गलत है। थर्ड देखेंगे विच इज 1730, we have 975, we have 1054, we have 1081, we have 1090, we have 1093, and your options among the following are A 730, B 975, C 1090, D 1093। अब चेक करना है कि इसमें कौन सा नंबर है। अब यहाँ से अगर हम जाते हैं डिफरेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, और यहाँ पे डिफरेंस हमारा हो जाता है खराब। अगर इस पैटर्न को बैक से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए आपका 81, बट ये 81 आ नहीं रहा है। और यहाँ पे आप देखो डिफरेंस तो 729 आ रहा है, विच इज 3 टू द पावर 6, विच इज ऑल्सो करेक्ट। फिर यहाँ पे डिफरेंस गड़बड़ कर जाता है। यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए था 243 का, और यहाँ पे 81 का, वो नहीं है। अगर 81 और 243 का डिफरेंस होता है तो ये नंबर आपका 973 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो विच इज रॉन्ग। And guys, let's go for the last question of this series. हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है 3, 4, 9, 28, 565, 3397। तो ये हमारे पैटर्न है, एंड विल बी सॉल्विंग दिस। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो विल चेक कि क्या क्या डिफरेंसेस है। अब जैसे ये वाला 3 से 4 पे गए, डिफरेंस इज 1, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, बट आप ये देखो कि पैटर्न कैसे इंक्रीज करता है। 928 यहाँ पे पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, मगर इसमें क्या है कि अगर हम 3 इंटू 1+1 करें तो यू विल बी गेटिंग 4 इंटू 2+1 इंटू 3+1। फिर अब 28 इंटू 4+1 इज अगेन करेक्ट, बट अब 113 इंटू 5+1 करते हैं तो ये 566 आना चाहिए था। यहाँ पे 565 इज द रॉन्ग नंबर। तो ये हुआ हमारा नंबर सीरीज पैटर्न के ऊपर, जो बहुत कॉमनली हर साल 5 क्वेश्चन यू विल इजीली फाइंड इन दी एग्जाम। नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद एल्जेब्रिक इक्वेशंस, और यू कैन से कि इक्वेशन है बस हमें सॉल्व करके कंपेयर करना है। तो यू कैन हैव लीनियर इक्वेशन इन दिस,
लीनियर, क्वाड्रेटिक कुछ भी आ जाता है, दो तो आएंगे ही आएंगे, इधर लीनियर और क्वाड्रेटिक। एंड वी हैव टू प्रूव, जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं वो इस तरीके से है। हमें ये इनमें से कोई भी एक रिजल्ट सेटिस्फाई करना होता है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बी इफ एक्स इज लेस देन वाई, if x is greater than or equal to y, d we have if x is less than or equal to y, and then e may we have if x is equal to y और रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, मतलब कोई रिलेशन पता नहीं चल पा रहा है, एक वैल्यू बड़ी आ गई एक छोटी आ गई, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा वो बहुत सिंपल है, 4√x प्लस 3/√x इज इक्वल्स टू √x, एंड इसी का जो और पार्ट में y वाला इक्वेशन है, दैट इज y टू द पावर 5/2 माइनस y टू द पावर, सॉरी 7 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय रूट y इज इक्वल्स टू 0। ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इज इक्वल्स टू x आ रहा है डायरेक्ट, और जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो y इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है। सिंपल है। सी स्कोर करना एमएसटीटी में इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है वो डायरेक्टली ई वाली सेटिस्फाई कर रही है, दैट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब इसी में हम अपना सेकेंड इक्वेशन देखते हैं जो कि है 4x² माइनस 19x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 3y² प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे हमें सॉल्व करना है दोनों को। अगर हम 4x² माइनस 19x पे सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है, 4x² माइनस 16x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, आप कॉमन लेंगे 4x, x माइनस 4, तो x की एक वैल्यू 4 आ रही है, एक वैल्यू 3/4 आ रही है। 3 4 12, इसको ब्रेक करने आते हैं 12 में तो 6 और 2 हो जाएगा, वो भी इजीली डन है। तो ये आपका हो जाएगा 3y² प्लस 6y प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y आपका -2 आएगा और y -2/3 आएगा। अब इस केस में x इज ग्रेटर देन y, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है। एक और क्वेश्चन करते हैं, तीन क्वेश्चन और करते हैं सेम पैटर्न पे, देन विल गो टू अदर टॉपिक। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये दे रखा है, क्वाड्रेटिक ही देते हैं ज़्यादातर, 25x² प्लस 25x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड 5y² प्लस 20y² प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अरे अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड लगाओ और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड देन यू कैन सॉल्व इट। 25 6 50, 50 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 6 15 और 10 में, तो 25x² प्लस 15x प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5 to the 100, ये हो जाएगा 10 में, 5² प्लस 10y प्लस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब 5x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 5x प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी आ गया 5x प्लस 3। अब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3/5 और -2/5। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं, इधर से y की वैल्यू निकालने देंगे तो y आएगा -2 और -2। वेरी इजी। अब अगेन ये है पॉइंट -0.6 या -0.4, अगेन x इज ग्रेटर देन y आया। ओके नेक्स्ट में देखते हैं, 2x² plus 11x plus 12 is equals to 0, and then we have in terms of y the equation is 2y² plus 19y plus 45 is equals to 0. 2x² plus 8x plus 3x plus 12 is equals to 0. करेक्ट। अब इसको ब्रेक कर देंगे, 10 और 9 में रहेगा, 2y² plus 10y plus
9y plus 45 is equals to 0. 2x कॉमन ले लिया, x plus 4 plus 3 x plus 4, x की वैल्यू आ गई -3/2 और x की वैल्यू आ गई -4। ऐसे y निकालेंगे, y2 कॉमन लेंगे तो y आएगा -5 और y आएगा -2। अब इस केस में बेसिकली अगर देखा जाए तो इस केस में भी सेम सिचुएशन आती है, x इज ग्रेटर देन y। तो ये वाले यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के यू विल बी गेटिंग 6 क्वेश्चंस इन द एमएससीईटी फॉर श्योर। जब हर साल आते हैं एंड जो हमने नंबर सीरीज पैटर्न पे किया उसके भी यू विल गेट इजीली 6 क्वेश्चंस। तो ये बहुत कॉमन है जो उसमें आता ही आता है, तो यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस एंड increase your rank. Next, we will be doing a question on mixture and alligation, which is again very common in the exam. Mixture of milk and water has been kept in two separate containers. And एक कंटेनर में जो रेशियो है वो है 5:1 and that in the another container is 7:2. In what ratio the mixtures of these two containers will mix so that the quantity of milk in the new mixture may become 80%. Your options are A 2:3, B 5:6 or 5/6. Sorry, B should be 3:2, C 4:5 and D none of these. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर मिक्सचर एंड एलिगेशन और 2019 2018 मतलब हर साल ये क्वेश्चन, मतलब ये नहीं इसके जैसे एलिगेशन के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। देन जो फर्स्ट कंटेनर है हमारा, अगर हम सोल्यूशन करने जाएं तो फर्स्ट कंटेनर में जो हमारा रेशियो है वो है 5:6 कंटेनर 1 विच कैन बी टर्म्ड एज C1। C2 का जो रेशियो है दैट इज 7/9 क्योंकि 7:2 है तो टोटल 7/9 हो गया। फाइनल मिक्सचर जो हमें चाहिए वो चाहिए 80% मिल्क का, तो हो गया 4/5 का। तो अब अगर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल लगाए 5:6 7/9 4/5, तो सॉल्व करेंगे तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करके 5 9 45 9 4 28 35 1/45 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 30 5 6 30 हो जाएगा 1/30। The ratio therefore required
ratio is equal to 1/45 divided by 1/30, which should be equal to 1 gets cancelled, 15 to the 15 3 the, which is 2/3. So ये क्वेश्चन था which is very commonly asked in MHCT exam. Then next we have a question from basically सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. ये भी हर साल कॉमन टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता ही आता है. इफ ₹1000 be invested at interest rate of 5% and the interest be added to the principal every 10 years, the number of years in which it will amount to rupees 2000 is A. 16 2/3 year, B. 6 1/4 year, C. 16 year, D. 11 year. तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन या कि कितना इंटरेस्ट कितना हो रहा है कितने टाइम में, ये वाले क्वेश्चन आर वेरी कॉमन. अब नॉर्मल लॉजिक है, अगर 10 साल में हम निकालें कि कितना इंटरेस्ट हो गया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1000 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू रुपीज 500. तो जो प्रिंसिपल अब हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 1500. बट जो टोटल अमाउंट है वो है 2000. तो इंटरेस्ट जो अलग से अर्न किया है 2000 माइनस 1500 विच इज इक्वल टू 500. अब आप अपना सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला लगेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर बेसिकली, तो वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 500 है, तो 500 इज इक्वल टू 1500 इंटू 5 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. यहाँ से हमें टी कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100. अब टी इज इक्वल टू 20/3 और पीछे के 10 साल, तो 10 प्लस 20/3 10 50/3. तो जो आपका जो टोटल टाइम हो जाएगा वो जाएगा 16 2/3 ईयर्स, विच इज आर फर्स्ट ऑप्शन. सो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में. दीज आर वेरी सुपर कॉमन टॉपिक्स, बोल सकते हो कि हर साल आ ही रहा है. 20 में भी आया था, 19 में भी आया है. अभी लेट्स गो थ्रू 18 पेपर, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम 18 पेपर आल्सो. जैसे अब सीरीज पैटर्न का, अब 18 में यू हैव 6 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सीरीज पैटर्न अगेन. So let's look at the examples. For example, our first series is 6, 4, 5, 8.5, 18, 55, 139. A, 4, B, 5, C, 8.5, D, 55, E, 18. अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा सीरीज रॉन्ग है. अब इफ विल गो 6 से 4 पे आया है तो ऑब्वियसली डिक्रीज किया है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ता ही जा रहा है. तो अब क्या पैटर्न होगा, 6 इंटू 0.5 प्लस 1 गिव्स यू 4. But 4 into 1 plus 1 gives you 5. 5 into 1.5 plus 1 gives you 8.5. 8.5 into 2 plus 1 gives you 18. 18 into 3
नहीं होना था, 18 into 2.5 plus 1 होना था, तो 18 to the 36, 36 plus 1 46, तो 56 55 नहीं होना था, यहाँ पे 56 होना चाहिए था, which would be the correct answer. देन जो हमारी सेकेंड सीरीज है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है वह 5 4 7 20 79 2 3 6 3 A 4 B 7 C 20 D 3 8 6 E 79, इनमें से कौन सा नंबर गलत है? ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज हुआ 5 to 1 -4, बट यहाँ पे फिर से इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज हो रहा है, बट कभी ऑड हो रहा है, कभी इवन हो रहा है, तो बेसिकली यू आर एडिंग वन और यू आर सब्ट्रैक्टिंग वन, तभी ये वाली सिचुएशन है। अब when we are solving this, we are getting 5 into 1 minus 1 4, 4 into 2 minus 1 7, 7 into 3 minus 1 20, 20 to 4 minus 1 79, करेक्ट है। 79 into 5 minus 1, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। 79 into 5, ऑब्वियसली वन प्लेस पे 5 होगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 तो 4 आना चाहिए था, जो भी होता 4 आता, तो ऑब्वियसली 386 यहाँ पे गलत हो जाता है। लेट्स डू वन मोर सीरीज क्वेश्चन, देन विल सी परसेंटेज का 2018 में क्या क्वेश्चन आया था। 118 120 960 5760 230 40 एंड 460 80, इनमें से कौन सा नंबर गलत है? हमें यही चेक करना है। अब सी द पैटर्न इंक्रीज कर रहा है, बट जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है इनके बीच के गैपिंग का जो रिजल्ट है वो वेरी कर रहा है। अब विच कैन बी द रॉन्ग नंबर? ए योर ऑप्शन इज 18, B your option is 960, C your option is 5760, D it is 23040, E which is 46080। अब एक चीज नोटिस कीजिए, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यू गेट दिस। इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट दिस। इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट दिस। अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट दिस। तो अब इसको 10 से डिवाइड करना चाहिए था, तो हमारे पास आता 12, तो 18 इज द रॉन्ग आंसर यहाँ पे। तो ये था सीरीज पैटर्न का क्वेश्चन। उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी देखते हैं कि किससे क्या क्वेश्चन आया था। परसेंटेज के क्वेश्चन थे अगेन, तो एंड अलजेब्रिक इक्वेशन वाले जो क्वाड्रेटिक वाले हमने क्वेश्चन किए वो भी बहुत सारे थे पिछली बार भी। एवरी ईयर देयर आर अप्रोक्सीमेटली गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। जैसे एक क्वेश्चन है अगले, अगेन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक पूछा गया है, तो उसको डिस्कस करते हैं। 6 liter is taken out from a vessel full of kerosene and substituted by pure petrol. This process is repeated 2 more times. Finally, the ratio of petrol and kerosene in the mixture becomes 1701/27. Find the volume of the original solution.
Your options are A 14 liter, B 16 liter, C 8 liter, D 42 liter. So इस क्वेश्चन के लिए we have the direct formula now. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है which is डिक्रीज अमाउंट या जो भी वैल्यू में चेंज आता है आपका that is equals to original 1 minus replacing amount divided by original and कितनी बार ये प्रोसेस हुआ which is represented by n. अब डिक्रीज अमाउंट इज 27, ओरिजिनल अमाउंट इज 1728, 1 माइनस हर बार कितना हुआ और ये प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ. अब हमें कैसे पता चला कि ओरिजिनल 1728 था, क्योंकि जो रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1701:27. तो ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया, कंबाइन करो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यहाँ से सॉल्व करके यू कैन इजीली फाइंड वैल्यू. अब ये 27/1728 आ गया, क्यूब रूट which is equals to 1 minus 6 over k. ये हो गया 3/12 which is 1 minus 6 over k. अब 6 over k यहाँ आ गया, सॉल्व करेंगे 9/12, k की वैल्यू कितनी आ गई 8. सिंपल. तो ये वाला क्वेश्चन था. मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन काफी पूछ रहते हैं. जैसे एक क्वेश्चन है मेंसुरेशन से which is again very common topic n. A cone is made of a sector with a radius of 14 centimeter and an angle of 60 degree. What is the total area of the cone? Your options are A 119.78 centimeters square, B 191.87, then we have C 196.5 centimeters square, and D we have 195.794 centimeters square, and then we have E none of these. अगर अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये आपको 60 दिया होगा, एंड ये आपका स्लैंट हेड का भी काम करेगा फिलहाल, एंड ये आपका रेडियस भी होगा, एंड ये वाली जो लेंथ है दैट इज आपका 2 पाई है. तो हमको 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर इंटू 60/360 है. यहाँ से कैपिटल आर जिसको सॉल्व करते हैं 360 1/6, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो आर इज इक्वल टू r/6 हो जाएगा. एंड हमें क्वेश्चन में आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ये वाला, तो जो कैपिटल आर होगा वो आपका हो जाएगा 14/6 विच इज इक्वल टू 7/3. एंड वी नो एल इज 14. सेम जब आपको उसको फोल्ड करेंगे तो वो आपका कोन का भी काम करेगा, तो पाई आर एल प्लस आर 22/7 इंटू 7/3 14 प्लस 7/3. अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 गया 42 49, 22 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 9, which is approximately equal to 119.78 centimeter square. Done. फिर ये भी काफी कॉमन था और सिंपल भी क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. एमएचसीटी में क्वांट इज नॉट द प्रॉब्लम. एमएचसीटी में बाकी सेक्शन कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. अब अगर आप 2017 का पेपर देखेंगे अगेन यू हैव द सेम. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब अगर मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखें तो इफ यू डू नंबर सीरीज, इफ यू डू क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक,
परसेंटेज अर्थमेटिक में आपका सारा आ जाएगा। देन क्वालिटी हो गया मेंसुरेशन एंड डीए। अगर आप ये सारे टॉपिक्स काफी अच्छे से कर लेते हैं तो यू विल इजीली क्लियर one section of MHCD एग्जाम a very good percentile। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा होते हैं तो टाइम भी कम होता है, तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेसी ऑल्सो। तो ये था। So thank you guys for attending the session, and you can use my referral code Rathore Life by subscribing to an academy.